but somehow we have to juggle with the technology. So I welcome all of the respected delegates who are the part of this meeting today. And I welcome you all to share your ideas and your thoughts about how to do research, how to plan research, and what kind of the research is to be hold. But before the question answer session, of course, I have to go through the all details, what this topic is and what we are going to talk about today. The topic I'm going to talk about today is quite familiar to most of you, and that is planning and designing research study. And we will be looking into different type of research designs, which includes the type of research which is qualitative in nature, as well as the research which is quantitative in nature. So मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों के अपने एकेडमिक जर्नी में आप लोग ये दोनों तरह की रिसर्च के कॉन्सेप्ट से बाय एंड लार्ज ज़रूर जो है वो वाकिफ़ हैं, बट आज हम उनको एक ओवरव्यू देंगे, उसके थोड़े से टेक्निकल एस्पेक्ट्स को देखेंगे और कोशिश करेंगे कि आज के इस सेशन से हम एक दूसरे से कुछ म्यूचुअली अच्छी लर्निंग्स जो हैं वो सीख सकें. So to briefly let you know about myself, my name is Amina Mausam and I'm working as a chairperson of psychology department here at Lahore College for Women University, and I'm very thankful that I have been invited for this very prestigious talk today. Very few things about myself: that I have been working in the field of clinical health psychology for last 20 years. I have supervised 22 PhD candidates and 100 MS scholars. Couple of research papers I have published so far in prestigious journals, and I am working as a director at large for International Council for Psychologists. I've been privileged enough to work with WHO, many funded research projects I have been looking into. I'm working in a core team of presidential telemental health line as well, and currently in the capacity of chairperson of the department, I'm trying to launch new programs and trying to serve the community by producing better psychologists. So so far, for the last couple of the years, I have been around different international universities, naming through Oxford, Cambridge, Glasgow, Edinburgh, Manchester, across the USA, Canada, and many, many others. And what I gathered, that all across the world, research is something which is being carried out, which is being disseminated, and which is being understood by each and everyone in their own context. So indigenizing the research is very, very important. तो आप में और हम सब मेरे रिस्पेक्टेड कॉलीग्स, हम आज जो कुछ भी पढ़ने जा रहे हैं उसमें मुझे लगता है जो गो थ्रू करने जा रहे हैं उसमें एक कॉन्सेप्ट हमें अपने माइंड में रखना बहुत बहुत ज़रूरी है कि रिसर्च हमारे अपने पर्सपेक्टिव में कैसे करनी चाहिए, और हाउ डू वी हैव टू अंडरस्टैंड रिसर्च लाइक री एंड सर्च. मैं हमेशा रिसर्च के वर्ड को बाइफ्रिकेट करती हूँ इनटू टू डिफरेंट पार्ट्स like re and search, because the problem is there, the objective is there, the systematic approach is there, but we have to revisit it, we have to redo it into one and again different connotations. So मैं हमेशा research को दो parts में इस तरह से define करती हूँ. अब research जो है वो है क्या? चूँकि आप सब माशाल्लाह काबिल इसातिज़ा हैं, तो एक पर्टिकुलर डेफिनेशन जो हम देते हैं हमेशा किसी भी एक सब्जेक्ट मैटर के बारे में, आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद दैट. लाइक रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक, वेल ऑर्गेनाइज्ड and logically sound method of investigation to certain questions which could be pertaining to any psychological, social, economical, financial or any other area which is beneficial for human beings and as well as animal. तो मुझे ये लगता है कि ये मेरी खुद की डेफिनेशन है, because what I have understood as a professor of psychology over here, that एक research की कोई significance होनी चाहिए, उसका एक outcome होना चाहिए जो कि either आपकी human kind को support कर रहा है, कोई benefit दे रहा है, या वो आपकी animal welfare के लिए use हो रहा है. तो कहीं ना कहीं outcome ज़रूर होना चाहिए.
सो सिस्टमैटिक है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है, लॉजिकल है। अगर हम इसकी थोड़ी सी डिटेल्स जो मैंने आपको स्लाइड्स में दी हैं, तो एक सिस्टमैटिक अप्रोच हम फाइनल करते हैं रिसर्च करने के लिए। कोई ऑब्जेक्टिव लेके चलते हैं, कोई बायसेस लेके नहीं चलते हैं। वी नीड टू हैव सम काइंड ऑफ एम्पिरिकल एविडेंस अवेलेबल विद अस। फिर रिसर्च वो होनी चाहिए विच कुड बी अ रेप्लिकेटेबल रिसर्च इनटू अ सर्टेन कंडीशंस। फिर रिसर्च को ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ये नहीं कि उसको आप किसी एक सिनेरियो में किसी तरह एक्सप्लेन करें और किसी और सिनेरियो में किसी और तरह एक्सप्लेन करें। Definitely it should be a logical and critical thinking approach which should be behind the research. Without a peer review, there is no concept of having a research. मैं अपनी कैपेसिटी में एक रिसर्च करती हूँ, बट आई डोंट लाइक टू शेयर इट विद एनी अदर कोलीग्स कि वो उसके ऊपर अपना रिव्यू दें। तो इसका मतलब है कि मैंने इस रिसर्च में कुछ ना कुछ ऐसी कंडीशंस रखी हैं जो शायद ट्रांसपेरेंट नहीं है और मैं उसको शेयर नहीं करना चाह रही दूसरे लोगों से। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू peer review that research and then iterative process. हमें रिसर्च को रिट्रिएट करना होता है, उस प्रोसेस का हिस्सा बनाना होता है कि हम एक सर्टेन हाइपोथेसिस एंड थ्योरीज लेके चलें, लोग उस पर अपनी फीडबैक दें, एंड देन वी हैव टू सी कि उसकी लाइट में हम कैसे रिट्रीट कर सकते हैं अनदर रिसर्च क्वेश्चन। नाउ टॉकिंग अबाउट प्लानिंग अ रिसर्च। रिसर्च की प्लानिंग हैज़ अ सर्टेन कंपोनेंट्स व्हिच यू नीड टू सी, और सबसे पहली चीज़ जिसकी हम बात करते हैं दैट इज़ टू आइडेंटिफाई इश्यूज एंड ऑप्शंस। लाइक नो मैटर आप किस भी एरिया में रिसर्च कर रही हो, आइदर इट्स पॉलिटिकल साइंस रिसर्च, एजुकेशन साइंस रिसर्च, आप मैथ्स कॉम की बात करते हैं, साइकोलॉजी की करते हैं, आप लिटरेचर की बात करते हैं, वी हैव टू सी दैट हमारा रिसर्च का प्रॉब्लम क्या है। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाना और उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में अपने इशू को नोट डाउन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। Then after identifying the problem statement, let's say we have decided one particular question to investigate, हमें उसके लिए कुछ गोल्स स्टेट करने होते हैं कि ये रिसर्च इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ किन किन गोल्स को टैप करेगी, क्योंकि हम रिसर्च को इनफाइनाइट नहीं छोड़ सकते, हम उसको लूप में लाए बगैर नहीं छोड़ सकते। ये नहीं कर सकते कि हम उसको जो है वो निट ना करें, हम उसको एक ओपन क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते कि जो मर्जी इसमें समा जाए। वी हैव टू सी कि हमारा पर्टिकुलर गोल क्या है, एंड देन उस गोल के मुताबिक हम ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं और हम प्रायोरिटीज बनाते हैं। लेट्स से कि मैं कहती हूँ कि जी मैं स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ पे काम करना चाहती हूँ। अब मैंने आइडेंटिफाई किया इशू कि देयर इज अ प्रॉब्लम विद द स्टूडेंट्स मेंटल हेल्थ दीज डेज, स्पेशली आफ्टर द कोविड, इट्स इमेंस एंड इट्स ह्यूज। तो मैं कहती हूँ कि जी मैं स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ पे काम करना चाहती हूँ कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच इज लीडिंग देम टुवर्ड्स वेरी पुअर मेंटल हेल्थ। ओके फाइन, अब हम देख रहे हैं कि हमारा इशू आइडेंटिफाई हो गया, बट नाउ आई हैव टू स्टेट अ गोल। अब मेरा गोल क्या होगा, आई हैव टू सी कि मैं किन स्टूडेंट्स पर ये काम करूंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहूंगी कि मैं पाकिस्तान में ये रिसर्च करूंगी। पाकिस्तान में मैं ये रिसर्च कहाँ करूंगी, आई हैव टू सेट माय गोल, आदर आई कैन गो टू ऑल प्रोविंसेस एंड मैं सब जगहों से ये डाटा ले सकती हूँ या नहीं। तो मैं ये डिसाइड करती हूँ कि जी नहीं, मैं सिर्फ पंजाब से कर रही हूँ और पंजाब की मैं 5 बड़ी यूनिवर्सिटियों से कर रही हूँ। फिर मैं देखती हूँ जी ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, देन आई हैव टू राइट डाउन कि एग्जैक्ट ऑब्जेक्टिव और प्रायोरिटीज मेरी उस रिसर्च में क्या है। मैं स्टूडेंट्स के सिर्फ एकेडमिक इश्यूज को देख रही हूँ, मैं उनके डोमेस्टिक इश्यूज को देख रही हूँ, मैं उनके पीयर ग्रुप के साथ जो रिसर्चेज में इश्यूज बताए जा रहे हैं वो देख रही हूँ, या मैं उनके पेरेंट्स के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उन इश्यूज को देख रही हूँ। सो आई हैव टू सेट माई प्रायोरिटीज कि मैं क्या देख रही हूँ। Then I have to collect and interpret data. Collection of a data is something which is very important, and in what way I am going to collect data is another important thing. यानी मैंने ये इंक्वायरी जो मैंने सेटअप की है, क्या मैं क्वालिटेटिवली लोगों से जाकर इसके ऊपर इंटरव्यू करके फोकस ग्रुप करके जो हम आज बात करेंगे, या मैं IPA करके लोगों से पूछूंगी कि उनके इश्यूज क्या हैं और मैं मेंटल हेल्थ के ऊपर कोई उस पर उसके आइडेंटिफाई करूंगी फिनोमेनोलॉजी को, या मैं एक सर्वे क्वेश्चनियर यूज करूंगी, मैं उससे डाटा कलेक्ट करूंगी पेपर पेंसिल से, गूगल फॉर्म से वगैरह वगैरह, और देन उसी के अकॉर्डिंगली मैंने अपनी इंटरप्रिटेशन करनी हो। देन द फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज टू प्रिपेयर प्लान्स। प्लान प्रिपेयर करना मीन्स कि हाउ वी हैव टू डू ऑल दिस प्रोसीजर, इस सारे प्रोसीजर को प्रिपेयर करना कि कहाँ से कौन सी चीज़ हमने लेनी है, कौन सी चीज़ नहीं लेनी, कितनी लेनी है, कितनी हमारा इट्यूशन रेट होगा, कितना हमारा टोटल सैंपल होगा, हमारा फॉर्मूला क्या होगा सैम्पलिंग का, वगैरह वगैरह।
एंड देन वी हैव टू ड्राफ्ट प्लान्स. जो भी हमने प्रिपेयर किया है वो हैव टू मेक अ प्रपोजल आउट ऑफ इट कि हमने ये चीज ऐसे एग्जीक्यूट करनी है. This is important because until and unless we do not have a draft plan, हम उसके impact को evaluate नहीं कर सकते. जब हम एक चीज अपने पेपर पेंसिल पे ड्राफ्ट करते हैं, हम उसको फिर evaluate करते हैं कि इसके क्या pros and cons होंगे, इसके क्या फायदा नुकसान होगा, and then we went to the seventh step which is review and adopt plans. फिर हम जब वो बन जाता है तो हम रिव्यू करते हैं और अडॉप्ट करते हैं कि हमने किस प्लान को कैसे लेके चलना है. On the 8th step, we review and adopt implementation programs. कि उसकी implementation कैसे होगी. And on 9th stage, we actually implement those programs. Now, if we have to do a research of a very small scale, शायद उसमें हम implementation और review के ऊपर उतना ज़्यादा contemplate नहीं करते. लेकिन जब हम एक बिग मेगा प्रोजेक्ट रिसर्च की बात कर रहे होते हैं, जैसे आजकल आप लोग बहुत सारे फंडेड रिसर्च प्रोजेक्ट्स के बारे में सुनते हैं जो कि डिफरेंट मल्टीनेशनल फंडिंग एजेंसीज भी दे रही हैं, हमारा हायर एजुकेशन कमीशन दे रहा है, हमारी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब दे रही है, हमारा प्लानिंग कमीशन दे रहा है. तो वो सारे जो फंडेड प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें 7th, 8th और 9th जो पॉइंट है, अगर आपने ये स्ट्रांगली लिखे हैं और अच्छी तरीके से बताए हैं तो दिस इज द ओनली वे यू कैन गेट एनी काइंड ऑफ रिसर्च फंडिंग. Now, looking at the crux of the topic, which is our mandate today, that हमारी research की types क्या हैं? The research is primarily being distributed into two major ways, a qualitative research and a quantitative research. As you can see, that there are the four things which are the main lead of the research: purpose, data type, approach and analysis. ये चार चीजें ऐसी हैं जो कि दोनों रिसर्चेस को डिफाइन करती हैं कि हम रिसर्च को करते कैसे हैं. अब पर्पस में अगर मैं क्वालिटेटिव रिसर्च में देखूं तो वो इस पर्पस को कैसे अचीव करती है, वो बात करती है कि हमने हर उस सवाल का जवाब जिसको हम कहते हैं कि क्यों, लाइक हम कहते हैं आजकल के बच्चे क्यों इतना ज़्यादा टाइम इंटरनेट पे लगाते हैं, ठीक है. तो ये चीज़ जो है ये क्वालिटेटिव रिसर्च एक्सप्लोर कर सकती है बाय डूइंग सर्टेन काइंड ऑफ डिटेल इंटरव्यूज, फोकस ग्रुप इंटरव्यूज पूछा जा सकता है. वेयर एज पर्पस में जब हम क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात करते हैं तो वो बात करते हैं हाउ मेनी एंड हाउ मच. हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कितने परसेंट स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना टाइम जो है इंटरनेट में इन्वेस्ट करते हैं रादर देन डूइंग सम अदर प्रोडक्टिव थिंग. वैसे इंटरनेट भी प्रोडक्टिव ही चीज़ है, लेकिन द यूज ऑफ इंटरनेट डिपेंड्स कि आप उसको प्रोडक्टिव यूज करें या नहीं. अच्छा, देन डाटा टाइप. क्वालिटेटिव रिसर्च में हमारे पास ऑब्जर्वेशंस होती हैं, सिंबल्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं, जबकि क्वांटिटेटिव रिसर्च में एज इट इज़ अंडरस्टूड हमारे पास नंबर होते हैं, स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स होते हैं. हम इसके ऊपर डिफरेंट तरह के असेसमेंट्स लगा सकते हैं और इसको हम इंटरप्रेट कर सकते हैं. अगर मैं अप्रोच की बात करूं तो क्वालिटेटिव रिसर्च में हम ऑब्जर्व करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं. क्वांटिटेटिव रिसर्च में वी यूज द वर्ड दैट वी मेजर एंड वी टेस्ट. लाइक हम कहते हैं कि हम मेजर कर रहे हैं जॉब सेटिस्फैक्शन को और फिर हम उसके ऊपर जो है वो असेसमेंट कर रहे हैं कि कितने परसेंट लोग जो हैं वो कितने जॉब सेटिस्फैक्शन रखते हैं या नहीं रखते हैं. देन एनालिसिस की अगर बात करें तो ग्रुपिंग ऑफ कॉमन डाटा एंड नॉन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इज अ क्वालिटेटिव रिसर्च. जिसमें हम थीम्स निकालते हैं, जिसके अंदर हम लोग डिफरेंट तरह के कोड्स लगाते हैं और हम कहते हैं कि जी हमारे बैटम्स में, हमारे डाटा में से ये चीज़ें जो हैं वो एज अ इमर्जेंट थीम डेवलप हो रही हैं. जबकि क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम टी टेस्ट लगाते हैं, हम अनोवा लगाते हैं, रिग्रेशन लगाते हैं, chi-square लगाते हैं और बहुत सारे एडवांस स्टैटिस्टिकल टेस्ट जो हैं वो हम यूज़ करते हैं. So this is the major thing and it shows and it explicitly explain कि ये दोनों रिसर्च अपनी नेचर में बहुत मुख्तलिफ होती हैं. Now looking at the major study designs जो quantitative और qualitative research जो हैं वो होल्ड करती हैं और जिन पर आज मैं आपके साथ बात करूंगी. Quantitative research में cause and effect का relationship experimental studies में देखा जाता है. quasi experimental studies में भी हम एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन करते हैं बट ट्रू कंडीशंस नहीं होती, क्योंकि इसमें हम हमारा जो वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट है उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते. डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में आगे. डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम एक पर्टिकुलर ग्रुप की या सिचुएशन की कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं उनको एग्जामिन करते हैं और कोरिलेशनल रिसर्च के अंदर
हम दो वेरिएबल्स के बीच में पॉसिबल रिलेशनशिप देखते हैं, तो ये हमारी सर्टेन टाइप्स हैं जो कि हम क्वांटिटेटिव रिसर्च में यूज करते हैं. Now, looking at the part of the qualitative research, we have the phenomenological approach which we use in qualitative research, and it explicitly says that we examine the lived experience within a particular condition or a situation. For instance, अगर मैं एक इंडिविजुअल जिसने कोई किडनी ट्रांसप्लांट एक्सपीरियंस किया है और मैं उसका एक्सपीरियंस जो है वो स्टडी करना चाहती हूँ कि उसके एक्सपीरियंसेस कैसे रहे ड्यूरिंग दिस वेरी मेजर हेल्थ ट्रांजिशन पीरियड, और मैं उनसे उसकी पूरी डिटेल जो है वो इंक्वायरी करती हूँ, तो वो एक क्वालिटेटिव रिसर्च की फिनोमेनोलॉजिकल टाइप होगी. या लेट्स से कि मैं किसी एक इंडिविजुअल से उसके किसी सर्टेन ट्रॉमा के एक्सपीरियंसेस जानना चाह रही हूँ, या मैं किसी एक छोटे बच्चे से कोई लेट्स से निगलेक्ट या चाइल्ड अब्यूज का एक्सपीरियंस जिसके साथ वो बड़ा हुआ है वो पूछना चाह रही हूँ, तो दिस काइंड ऑफ रिसर्च वुड बी अ phenomenological research. Then ethnographic research is an examining of the culture of a group of people. जैसे कुछ स्पेसिफिक प्लेसेस होती हैं जो कि हमारी दुनिया में थोड़े से काइंड ऑफ अनएक्सेसिबल प्लेसेस हैं या नो गो एरियाज हैं, या वहाँ के बारे में आम लोगों को इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होती, तो सोशल वर्कर्स, सोशियोलॉजी के एक्सपर्ट, साइकोलॉजी के एक्सपर्ट एथनोग्राफिक स्टडीज टेकअप करते हैं और वो उन पर्टिकुलर जगहों पर जाते हैं, वहाँ जाके रहते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, उस कल्चर के बारे में जानते हैं, उसकी बहुत सारी जो है वो प्रोज एंड कॉन्स के बारे में जानते हैं. ये मैं आपको आगे डिटेल से भी बताऊंगी. देन ग्राउंडेड थ्योरी इज अ particular kind of qualitative research which use a research problem to discover and develop a theory. ये एक सर्टेन तरह की रिसर्च है जिसके अंदर हम लोग जो भी इंक्वायरी करते हैं वो इवेंचुअली डेवलप करती है एक नई थ्योरी को. जैसे हम बहुत सारे हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करते हैं और उसमें से वो हाइपोथेसिस किसी न किसी थ्योरी के ऊपर बेस होते हैं, तो यहाँ पर हम सिर्फ एक थ्योरी डेवलप करने के लिए रिसर्च करते हैं. Now, looking into these, type of research into a bit more detail. सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की, क्योंकि जब भी रिसर्च की जहाँ पे भी बात होती है तो वो सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ही है जिसकी आउटकम के तौर के ऊपर हमें दुनिया में इतनी सारी जो नज़र आ रही हैं, डेवलपमेंट्स नज़र आ रही हैं, इतनी सारी ड्रग्स हैं जो हर रोज़ जो हैं वो अप्रूव होती हैं, FDA के अप्रूवल्स मिलते हैं और इस तरह की चीज़ें होती हैं. क्लिनिकल रिसर्च हो रही है बहुत सारी दवाइयों के ऊपर, हेल्थ के हवाले से, फिर न्यूक्लियर रिसर्च हो रही है. ये सारी रिसर्चेज जो हैं ये कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से स्टेम होती हैं. तो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन बेसिकली लुक्स फॉर कॉज एंड इफेक्ट, यानी इफ़ देयर इज़ ए देयर वुड बी बी. लेट्स से मैं कहती हूँ कि अगर यहाँ पर एक नॉइज़ जो है उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी जाए तो उसका इफेक्ट जो है वो ह्यूमन परफॉर्मेंस के ऊपर होगा. अगर एक लैब में सर्टेन लोग काम कर रहे हैं, मैं वहाँ पर ये टेस्ट करना चाहती हूँ कि 1 घंटे के अंदर कोई एक जो है वो लेट्स से किसी मशीन पे कोई वर्कर काम कर रहे हैं और मैं देखती हूँ कि वो अगर 1 घंटे अगर वो नॉइज़ के बगैर काम करते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है और वो कितने प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और अगर वो किसी जगह पर नॉइज़ के साथ काम कर रहे हैं तो उनकी एफिशिएंसी में कितनी कमी आती है और उनके प्रोडक्ट्स जो हैं उनके बनने की तादाद कितनी कम हो जाती है. तो दिस इज अ काइंड ऑफ एन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. So it requires having control over at least one of the independent variable or treatment variable. अगर मैं कोई cause and effect का relationship देखना चाह रही हूँ experimental design में, तो of course ये बहुत ज़रूरी है कि मेरा उन variables के ऊपर कोई control हो. तो experimental design usually बहुत controlled condition में किया जाता है और वहाँ पर हमारे पास ये फैसिलिटी मौजूद होती है कि हम नॉइज़ जैसे है उसके लेवल्स को कम या ज़्यादा कर सकें और उसके साथ साथ हम जो हमारा ट्रीटमेंट वेरिएबल यानी कि हमारी परफॉर्मेंस की जो परसेंटेज है उसको भी हम साथ साथ मॉनिटर कर सकें. एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन एडमिनिस्टर्स द ट्रीटमेंट टू सम ऑफ द सब्जेक्ट कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड नॉट टू द अदर्स कॉल्ड द कंट्रोल ग्रुप. एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हमेशा 2 ग्रुप होते हैं, एक ग्रुप जिसको हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहते हैं और एक ग्रुप जिसको हम कंट्रोल ग्रुप कहते हैं. अब इनके पार्टिसिपेंट्स को हमने सेलेक्ट कैसे करना है? दिस इज अ मेथड विच इज कॉल्ड रैंडम असाइनमेंट. सो हम हमारे पास जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनको रैंडमली असाइन करते हैं. ये मैं अगली स्लाइड में आपको इसकी डायग्राम दिखाती हूँ कि हमारे पास टोटल जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं इनको हमने कैसे
ग्रुप्स में डिवाइड करना होता है, और रिसर्चर का इसमें कोई बायस नहीं होता कि वो अपनी मर्जी से ये कहे कि वो कुछ को एक्सपेरिमेंटल में डाल देगा और कुछ को कंट्रोल में, रादर देन दे हैव टू यूज सर्टन टेक्निक्स टू डू दैट, कि वो रैंडम असाइन करें और रैंडमली सेलेक्ट करें. So every participant should have an equal chance of being assigned to the control group or experimental group. So this is the strongest design of testing cause and effect relationship, because हम जब randomize करते हैं participant को तो ये हमारे bias को बहुत ज़्यादा कम कर देता है. हमारा personal bias इसके अंदर नहीं होना चाहिए. Now अब एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन जो है उसकी 3 मेजर टाइप्स हैं, जिसमें पहला डिज़ाइन जो है वो बिटवीन सब्जेक्ट डिज़ाइन है, और दूसरा सब्जेक्ट जो है ये विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन है, और तीसरा सब्जेक्ट मिक्स सब्जेक्ट डिज़ाइन है. अगर आप पहले को अच्छे से समझ लेंगे तो आई होप देयर वुड बी नो प्रॉब्लम इन आइडेंटिफाइंग कि विद इन क्या होता है और मिक्स्ड क्या होता है. तो लेट्स से पहले बॉक्स में आप देख रहे हैं कि वी हैव अ टोटल सैंपल विच इज पार्टिसिपेंट 1 टू लेके पार्टिसिपेंट 12 तक, राइट. अब इन पार्टिसिपेंट्स को बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन में हमने 2 डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया. 1 से लेके 6 तक पार्टिसिपेंट एक ग्रुप में चले गए, उस ग्रुप को हमने कहा ये कंट्रोल ग्रुप है. इनकी सैम्पलिंग कैसे करनी है, आई नो दैट यू आर गोइंग टू हैव अनदर लेक्चर जो कि डिटेल में सैम्पलिंग के ऊपर होगा, इसलिए मैं उसको भी टच नहीं कर रही. उसके बाद आप दूसरा जो आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उसमें आपके पास 7 से लेके 12 तक पार्टिसिपेंट आ गए. अब ये आपके पास जो 2 ग्रुप हैं, ऊपर वाला कंट्रोल है, नीचे वाला एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है. अब इसके अंदर आपने वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इंट्रोड्यूस कराना है. जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है और जो कंट्रोल ग्रुप है, दोनों ग्रुप्स जो हैं वो उन मशीन्स के ऊपर काम कर रहे हैं और वो अपने अपने आर्टिकल्स या अपना अपना प्रोडक्ट बना के दे रहे हैं. लेट्स से वो जैकेट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, वो जैकेट्स प्रिपेयर करके दे रहे हैं दोनों, और हम देखते हैं कि 1 घंटे के अंदर दोनों ग्रुप्स जो हैं वो सर्टन जैकेट्स जो हैं वो बना रहे हैं. अब हम ये करते हैं, ये पीसफुल एनवायरनमेंट है, दोनों जो है वो काम कर रहे हैं. हम क्या करते हैं कि हम इसमें अपना वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट नॉइज इंट्रोड्यूस कराते हैं. बहुत ज़्यादा शोर से आपको ड्रम की आवाज़, म्यूज़िक की आवाज़, बीट करने की आवाज़ जो है वो लाउड म्यूज़िक जो है वो एक्सपेरिमेंटल पार्टिसिपेंट को इंट्रोड्यूस होता है, और वो कॉन्टीन्यूसली हाफ एन आवर उनको उसी तरीके से नॉइज से वो एक्सपोज होते रहते हैं, जिससे भी ज़ीओ मैन वी हाइपोथेसाइज की उनकी परफॉर्मेंस जो है वो इफेक्ट होगी. और फिर बाद में हम उसकी असेसमेंट को देखते हैं उन पार्टिसिपेंट की असेसमेंट के साथ जिन जो कंट्रोल ग्रुप में थे और जिनको कोई नॉइज एक्सपोज नहीं हुआ था. तो दिस इज कॉल्ड बिटवीन सब्जेक्ट एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन. ये मैंने बहुत सिंपल करके आपको बताने की कोशिश की है, यानी कि 2 ग्रुप्स हैं, एक को हम एक कंडीशन एक्सपोज कर रहे हैं और एक को हम एक कंडीशन एक्सपोज नहीं कर रहे. सो दिस इज बिटवीन सब्जेक्ट. फिर हम आ जाते हैं विद इन सब्जेक्ट के ऊपर. इसमें हमारे पास आप देखें सेकेंड लाइन में सैंपल P1 से लेके P12 तक हमारे पास 12 लोग हैं. इन 12 के 12 लोगों को हम कंट्रोल ग्रुप में परफॉर्मेंस करवाते हैं. इनसे हम कोई नॉइज एक्सपोज नहीं करते. ये सब लोग जैकेट्स तैयार कर रहे हैं और पीसफुली जैकेट्स तैयार कर रहे हैं. 1 घंटे के बाद अगले घंटे में हम इनको एक्सपेरिमेंटल पार्टिसिपेंट्स बना देते हैं. हम इन 12 के 12 लोगों को शदीद किस्म के नॉइज से एक्सपोजर देते हैं और हम देखते हैं कि अब उनकी जो है वो परफॉर्मेंस क्या होगी. सो दिस इज द विद इन कंपैरिजन ऑफ द वेरिएबल. लाइक एक पूरे ही ग्रुप को हमने एक कंडीशन पहले रखी और फिर दूसरे लेवल पर हमने सबको वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट यानी कि नॉइज से इंट्रोड्यूस कराया और हमने देखा कि उनकी परफॉर्मेंस पर क्या इफेक्ट आया. तो अगर आप बिटवीन सब्जेक्ट एंड विद इन सब्जेक्ट को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कर चुके हैं तो मिक्स्ड सब्जेक्ट डिज़ाइन आपके लिए समझना बहुत आसान होगा, क्योंकि इसमें हमने ये दोनों कंडीशंस जो हैं वो इकट्ठी कर कर एक नई कंडीशन प्रोड्यूस करनी है. यानी हमारा जो सैंपल 1 से लेके 12 तक का है, उन पार्टिसिपेंट्स के हमने 2 ग्रुप बना दिए जैसे बिटवीन सब्जेक्ट में बने हुए थे. यानी P1 से लेके P6 तक वही सेम पार्टिसिपेंट्स हैं जो कंट्रोल ग्रुप है, और फिर हमारे पास P1 से P12 तक हमारे पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है. इस ग्रुप के साथ हम बिल्कुल बिटवीन सब्जेक्ट वाली रिसर्च उसी प्रोटोकॉल के साथ करेंगे, लेकिन उसके बाद हम जो पार्टिसिपेंट 1 to 6 है उन सब का आपस में विद इन कंपैरिजन भी करेंगे जैसे हम विद इन सब्जेक्ट में कर रहे थे. यानी उन सारे ही लोगों को हम वो कंडीशन से एक्सपोज करेंगे और उनके हम विद इन डिफरेंसेस देखेंगे, और इसी तरह एक्सपेरिमेंटल में भी हम सारे ही पार्टिसिपेंट्स को उस ट्रीटमेंट कंडीशन से एक्सपोजर देंगे और उनकी भी हम फिर परफॉर्मेंस देखेंगे. सो बेसिकली ये एक मेजर ड्राफ्ट है टू रन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन बिटवीन, विद इन एंड मिक्स्ड.
Now, coming towards the second type, which is quasi experimental research, I have to say that quasi research studies जो हैं ये cause and effect relationship से मिलती जुलती तो हैं, but they are less powerful than experimental design because they lack one or more characteristics of a true experiment. Like हम true experiment हम experimental research design को ही कहते हैं. For instance, हम यहाँ पर random assignment नहीं कर सकते because हमारे पास यहाँ पर कोई control group नहीं होता. Like for instance, मैं ये कहती हूँ हम अपने real world की बात करते हैं तो there are the different opportunities in which we have to do research. Like बहुत सारे clinical care के variables होते हैं, बहुत सारे ऐसी situations होती हैं जो कि naturally occurring होती हैं लोगों में, हम उनमें वो induce नहीं कर सकते. Let's say अगर मैं बात करती हूँ कि मैं एक जो है वो experiment करना चाह रही हूँ कि मैं एक किसी सर्टन हेल्थ कंडीशन के साथ अगर लोग मेरे पास आते हैं तो मैं सिर्फ उन्हीं लोगों पर वो एक्सपेरिमेंट करना चाह रही हूँ, तो वो हेल्थ कंडीशन में उनमें इंट्रोड्यूस नहीं कर सकती. लेट्स से लेकिन मेरे पास कोविड से एक्सपोज अगर कोई सैंपल आता है पेशेंट्स का जो कि जिनके लंग्स इफेक्टेड हैं, तो ये वो कंडीशन है जिसमें मैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च तो करूंगी, मैं उसमें देखूंगी कि इनका जो है वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या हो रहा है चीज़ों के साथ. अगर मैं इनको लेट्स से अगर मैं इनको एक वैक्सीन दी थी, दूसरी दी थी, तो क्या इफेक्ट हुआ, या मेरे पास अगर हेपेटाइटिस सी वायरस के पेशेंट्स आते हैं तो मैं उनको लेट्स से मैं कहती हूँ कि मैं उन्हें इंट्रोड्यूस करवाती हूँ रिबावायरिन रजीम के इंजेक्शन से. फिर मैं कहती हूँ अच्छा जी अब एंटरफ्रोन्स आ गए हैं, अच्छा जी अब सोल्डी की गोलियां आ गई हैं, लेकिन उनकी जो कंडीशन है, जो हेपेटाइटिस सी वायरस उन्होंने एक्वायर किया है, वो एज अ रिसर्चर मैं इंट्रोड्यूस नहीं कर सकती एज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ये कोई नॉइज नहीं है जिसे मैंने इंट्रोड्यूस करना है, ये एक हेल्थ कंडीशन है. तो ऐसी सिचुएशन में भी हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं, बट हमारा कंट्रोल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर नहीं होता, ना ही हम इस कंडीशन को रैंडमली असाइन करते हैं. एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कोजाई एक्सपेरिमेंट सिर्फ तभी किया जा सकता है जब ट्रू एक्सपेरिमेंट पॉसिबल नहीं होता. और लेट्स से अगर हमें लगता है कि हमारा कोई भी जो नया ट्रीटमेंट है HCV का, उससे हमें लगता है कि जी फ़ायदा नहीं हो रहा. लेट्स से मैं कह रही हूँ कि मैं उनको सोल्डी की टैबलेट्स दे रही हूँ और मुझे लगता है कि HCV को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो देन इट्स नो लॉन्गर बी एथिकल टू गिव इट अगर उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा. एंड लाइकवाइज अगर कोई ऐसा ट्रीटमेंट जिससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है और मेरा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया है, तो मैं उसको विदहोल्ड नहीं कर सकती, राइट. सो यहाँ पर एथिकल इन्वॉल्वमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बढ़ जाती है, बिकॉज हम एग्जैक्टली ट्रू पार्टिसिपेंट्स के साथ अपना काम कर रहे होते हैं. Now, these are the few of the comparisons between quasi experimental design versus experimental design. आप जैसे कि देख सकते हैं कि करेक्टरिस्टिक्स में मैंने वही बातें सिर्फ हाईलाइट की हैं क्लैरिटी के लिए कि क्वाज़ाई में हमने रैंडमली असाइन नहीं किए होते, एक्सपेरिमेंटल में हम रैंडम असाइन करते हैं. करेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं वो प्री एग्जिस्ट कर रही होती हैं, जो भी कंडीशंस होती हैं वो क्वाज़ाई के अंदर. एक्सपेरिमेंटल में हम खुद डिज़ाइन करते हैं कि हम कौन सी कंडीशन एक्सपोज करेंगे. कंट्रोल ग्रुप मैंडेटरी नहीं होता क्वाज़ाई एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में, लेकिन ट्रू एक्सपेरिमेंट में और यानी कि एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में ये ज़रूरी होता है कि हमारे पास एक कंट्रोल और ट्रीटमेंट ग्रुप दोनों मौजूद हो. Now looking at one of the very interesting and my favorite type of research design, which is descriptive research. Descriptive research aims to accurately and systematically describe a population, situation or a phenomena. So इसी से पता लगता है कि ये इंटरेस्टिंग काम है क्योंकि इट कैन आंसर व्हाट, वेयर, व्हेन एंड हाउ क्वेश्चन, बट नॉट वाई क्वेश्चन, क्योंकि वाई क्वेश्चन हम क्वालिटेटिव रिसर्च में देखते हैं. सो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन में हम वेराइटी ऑफ रिसर्च मेथड यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे वेरिएबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अंदर कोई भी कंट्रोल या मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स नहीं होता जैसे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में होता है. तो लेट्स मूव अहेड एंड सी what we are going to read into descriptive research. सबसे पहला जो मजे का तरीका है, I hope you all are aware of that method, is a survey method. It is a method that includes a detailed description of a subject or a topic. हम डिफरेंट तरह के सर्वे देखते हैं जी, गैलप सर्वेज हो रहे होते हैं, ओपिनियन पोल्स हो रहे होते हैं, फिर हम लोग सिंपल सर्वेज करते हैं अपने स्टूडेंट्स से. लेट्स से हम एडमिशन के टाइम भी उनको दे देते हैं कि वो स्टडी से क्या इंस्पायर करना चाहते हैं या उनका बेसिक इंफॉर्मेशन डाटा क्या है.
तो सर्वे इज आई थिंक इज अ क्वाइट फेमिलियर वे जिससे आप समझ सकते हैं कि लोगों के हम ओपिनियंस, उनके इंटरेस्ट, उनकी डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन, ये सब कुछ हम गेट कर सकते हैं. Then another type, which is observation, is basically a technique that is utilized for observing and recording participants. अब observation जो है, I think this is quite explicitly to understand कि observation जो है इसकी बहुत सारी types होती हैं. ये let's say guided observation भी हो सकती है, unguided भी हो सकती है, participant, non-participant, और different तरह की हमें इसमें approaches नज़र आती हैं. अगर हम थोड़ा सा देखें तो हमें वैसे भी नज़र आता है कि बहुत सारी हमारे यहाँ ऐसी रिसर्चेज होती हैं जो सोशल स्टडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही होती हैं कि अगर एक जगह पर ट्रैफिक में लेट्स से कोई प्रॉब्लम पेश आ जाती है और वहाँ पे कोई आसपास नहीं होता तो कितने लोग हैं जो हेल्प करेंगे. अगर एक बंदा खड़ा है तो वो हेल्प करेगा, अगर ज़्यादा लोग खड़े हैं तो वो समझेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे लोगों की है, जिसको हम बाय स्टैंडिंग फिनोमेना कहते हैं. तो ये वो रिसर्चेज और थेरीज हैं जो सिर्फ ऑब्जर्वेशन की बेस पे बनी हुई हैं. तो ऑब्जर्वेशन जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का. उसके बाद फिर हम देखते हैं, इसी तरह हम क्लिनिकल के केसेस में देखते हैं डिफरेंट लोगों को जो मेंटल हेल्थ कंडीशंस होती हैं वो किस तरीके से, कौन सा बिहेवियर कितनी दफ़ा उनका जो है वो डिस्प्ले हो रहा है, हम नोट करते हैं. उसके हम लोग चार्ट्स बनाते हैं और उनकी जो है वो मॉनिटरिंग करते हैं कि वो कौन सी उनकी फ्रीक्वेंट सिम्टम्स हैं, ऑटिस्टिक बच्चों की या आईडी बच्चों की या ADHD के जो हमारे पास बच्चे आते हैं वो कौन सा बिहेवियर उनका रेपिटेटिव है. ये सब कुछ ऑब्जर्वेशन बेस्ड रिसर्चेज हैं. सो इट्स नेवर अंडरमाइन इट्स इंपॉर्टेंस, इट्स ह्यूज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. देन आ जाते हैं केस स्टडीज़ के ऊपर. सो केस स्टडी टेक्निक्स जो हैं वो स्पेसिफिक फिनोमेना पर इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए हम करते हैं. केस स्टडी किसी कंट्री की भी हो सकती है, केस स्टडी किसी ऑर्गेनाइजेशन की भी हो सकती है, केस स्टडी किसी खास इंडिविजुअल की भी हो सकती है. सो इट डिपेंड्स कि आप इस टेक्निक को किस तरीके से यूज़ करते हैं. जैसे लेट्स से हम देखते हैं कि अच्छा कौन से कंट्रीज़ हैं जिन्होंने बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोग्रेस की, तो हम उस कंट्री को एक केस स्टडी के तौर पे लेते हैं. जैसे हम वेस्टर्न कुछ कंट्रीज़ की एग्जांपल लेते हैं, वहाँ के स्कूल्स बहुत अच्छे हैं, उनका स्कूलिंग सिस्टम बहुत अच्छा है. तो हम जैसे कहते हैं कि अच्छा जी फिनलैंड में जैसे बहुत मशहूर है कि वहाँ के बच्चों की अर्ली ईयर की प्रैक्टिसेस और स्कूलिंग बहुत अच्छी है, तो उनकी हम केस स्टडी उठा लेते हैं कि वो कैसे रन कर रहे हैं अपने सिस्टम को. लाइकवाइज केस स्टडी के अंदर हम एक इंडिविजुअल की केस स्टडी ले लेते हैं जो कि कैंसर से एक्सपोज हुआ, उसने कैसे अपनी लाइफ जो थी उसके साथ सरवाइव की, अपनी गुडविल से अपने कैसे अपनी जो पर्सनालिटी की उसकी स्ट्रेंथ्स थी उनको यूटिलाइज लाते हुए करते हुए उसने कैसे कम्बैट किया अपनी डिजीज से, अपनी रेजिलियंस की पावर से, और कैसे वो बेहतर हुआ. तो दिस कुड बी अनदर वे जिसमें हम केस स्टडीज को यूज कर सकते हैं. नाउ लुकिंग एट द टाइप ऑफ द सर्वेस, जो हमने सबसे पहले आपसे मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड में जैसे बात की थी, नंबर 1 वाज द सर्वे, मैं इसकी बात कर रही हूँ. सर्वे जो हैं उनकी भी आगे टाइप्स होती हैं, जैसे क्रॉस सेक्शनल स्टडीज हो सकती हैं या लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज हो सकती हैं. चलिए आपको एक थोड़ी सी डिफरेंट एग्जांपल इसके लिए देती हूँ. लेट्स से कि मैं एक रिसर्च करना चाह रही हूँ जिसमें मैं ये देखना चाह रही हूँ कि हमारे पास जो बच्चे एडमिशन लेकर आते हैं BS 4 ईयर्स प्रोग्राम के अंदर, उन बच्चों से मैं जो है वो यूनिवर्सिटी उनको क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है और उनके टीचर्स जो हैं उनके साथ किस तरह का एटीट्यूड रख रहे हैं, उसके ऊपर एक सर्वे फॉर्म डेवलप करती हूँ और मैं वो 3 ग्रुप्स को दे देती हूँ. मैं ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों को दे देती हूँ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बच्चों को दे देती हूँ और मैं वो मैनेजमेंट के बच्चों को दे देती हूँ. उसके बाद उन तीनों ग्रुप के रिजल्ट्स को मैं कंपेयर करती हूँ और मैं देखती हूँ कि इन तीनों फैकल्टीज़ में बच्चे जो हैं वो क्या क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं. लेट्स से इसी रिसर्च को मैंने एक लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में कंपेयर करना हो तो मैं ये कर सकती हूँ कि मैंने जो पहला ग्रुप ह्यूमैनिटीज़ से लिया, उन ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों का जब मैंने एडमिशन हुआ BS 1 में तो ज़ीरो उनकी मैंने जो बेसलाइन इंफॉर्मेशन थी वो मैंने उनसे ली कि वो कैसा परसीव कर रहे हैं, उनके क्या रिसोर्सेज हैं, उनको क्या एटीट्यूड मिल रहा है. फिर मैं सेमेस्टर पहला ईयर सेमेस्टर 1 और 2 कंप्लीट होने के बाद ईयर 2 में आ जाते हैं. सेमेस्टर 3 में उनसे मैं फिर वही दोबारा से कंपेयर करवाती हूँ, वही उनसे मैं क्वेश्चन फिल करवाती हूँ और मैं उसकी एक एवेल्यूएशन ले लेती हूँ. उसके बाद मैं फाइनल जब वो सेमेस्टर 7 या 8 में आते हैं तो मैं उनके ईयर 4 में
दोबारा से उसी पॉपुलेशन से उसी क्लास से ये डाटा कलेक्ट करती हूँ, तो ये मेरी एक लॉन्गिट्यूडनल स्टडी हो जाएगी जिसमें मैं ग्रुप 1 को डे 1 से लेके टिल 4 years 3 मुख्तलिफ टाइम्स पे इनकी मैं एवेल्यूएशन कर रही हूँ। 3 से ज़्यादा दफ़ा भी एवेल्यूएशन हो सकती है, बट लॉन्गिट्यूडनल स्टडी का मेन कॉन्सेप्ट ये होता है कि सेम ग्रुप विल बी कंपेयर्ड ओवर टाइम। अभी ये मैंने आपको सिर्फ ग्रुप 1 की एग्जांपल दी है, मैं इससे आगे नहीं जाऊंगी क्योंकि आई नो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग हैं, तो मैं इसको बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहती, लेकिन फॉर स्पेशलाइज्ड ऑडियंस मैं ये बता दूं कि इसी लॉन्गिट्यूडनल स्टडी के 3 ग्रुप्स को जब हम तीनों ग्रुप्स को बारी बारी स्क्वायर में रिपीट करते हैं लॉन्गिट्यूडनल में, तो ये हमारा एक लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन बन जाता है, लेकिन मैं आज उसकी बात नहीं करूँगी। नेक्स्ट आ जाते हैं मेथड के ऊपर, विच इज़ कॉल्ड अ कोरिलेशनल रिसर्च। Correlational research is comparatively considered a very simple kind of a research जिसमें हम involve करते हैं 2 or more variables and we are looking forward to have a relationship between them. अब वो positive relationship भी हो सकता है और वो negative relationship भी हो सकता है। Correlational research का मकसद, इसका पर्पस रिलेशनशिप की नेचर बताना होता है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है या स्ट्रॉन्ग नेगेटिव है, लेकिन कोरिलेशनल रिसर्च कभी भी कॉज एंड इफेक्ट को डिटरमिन नहीं करती। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आप ये बात जहन में रखें कि कोरिलेशनल रिसर्च एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की तरह कॉज एंड इफेक्ट डिटरमिन नहीं कर रही होती। फॉर इंस्टेंस, अगर मैं कहती हूँ कि आई वांटेड टू सी कि टेम्परेचर वेदर टेम्परेचर रिड्यूसेस द एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट, द इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा? टेम्परेचर, ठीक है, क्योंकि वो कम या ज़्यादा हम कर रहे हैं, एंड द आउटकम वेरिएबल इज परफॉर्मेंस। लेट्स सी अब टेम्परेचर में ये कहती हूँ जितनी ज़्यादा गर्मी होती जाएगी, जितना ज़्यादा शदीद गर्म मौसम होगा, बच्चों की परफॉर्मेंस उतनी ही पुअर होगी, उतनी ही ख़राब होगी। तो अब एक वेरिएबल जो है वो मेरा जा रहा है इंक्रीज़ की तरफ, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जा रहा है, और दूसरी तरफ मेरा जो है वो परफॉर्मेंस डिक्रीज़ होता जा रहा है, तो ये एक नेगेटिव कोरिलेशन इस्टेब्लिश होगा, ठीक है। इसी रिसर्च में मैं अगर ये कहती हूँ कि लेट्स से अगर हमारा टेम्परेचर जो है वो उसको हम ये कहते हैं कि कमरे के अंदर जितनी ज़्यादा कूलिंग बढ़ती जाएगी, बच्चों की परफॉर्मेंस उतनी बेहतर होती जाएगी, तो ये एक पॉजिटिव रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाएगा। सो बेसिकली इट्स ऑन द इंटरप्रिटेशन ऑफ अ रिसर्चर कि वो अपने वेरिएबल्स को कैसे डिफाइन करता है, तो फिर ही हम उसकी डायरेक्शन को देख सकते हैं कि वो पॉजिटिव में जाएगी, कंक्लूड होगी, या वो नेगेटिव में जाएगी। तो पॉजिटिव और नेगेटिव रिलेशनशिप की डायरेक्शन को देखना हमारा कोरिलेशनल रिसर्च का काम होता है। अच्छा, अब इवन अगर हम ये कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन आ रहा है हमारे टेम्परेचर और परफॉर्मेंस में, तो भी हम ये क्लेम नहीं कर सकते कि टेम्परेचर कॉज कर रहा है लो परफॉर्मेंस, क्योंकि हमारा इस सिचुएशन में वेरिएबल्स के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। हम ये सब कुछ तब रिपोर्ट कर सकते हैं जब इंक्रीज या डिक्रीज की लाइक्लीहुड हमारे पास हो, वो हम बता दें। अनटिल अनलेस कि हम एक ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर रहे हो, हम ये क्लेम नहीं कर सकते। पॉजिटिव कोरिलेशन की डायरेक्शन आप देखें, जब हम ग्राफ बनाते हैं तो इस तरह ऊपर की तरफ जाती है, नेगेटिव की आप देख लें वो किस डायरेक्शन में जाती है, एंड व्हेन देयर इज नो कोरिलेशन, तो ये टेबल आपके सामने है जिसमें कोई भी आप जो है वो लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते। सो ये 3 अपने जहन में इनके इमेजेस रखिएगा कि अगर किसी भी टेबल की डायरेक्शन इस एंगल से जा रही होगी तो वो आपकी पॉजिटिव होगी, वो नेगेटिव कौन सा होगा, और कोरिलेशन का टेबल कौन सा होगा। So I'm glad that we have timely completed the part जिसके अंदर हमने quantitative research की बात करनी थी, and now we are moving towards the qualitative research. Qualitative research की मैंने आपको basics पहले बता दी हैं, but now we are digging the one first method जिसको हम कह रहे हैं phenomenology. So in this approach we want to understand and describe the lived experiences or meaning of persons with a particular condition और सिचुएशन। जैसे कि मैंने आपको भी पहले बताया है, एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने कोट किया है, व्हाट इज इट लाइक फॉर एन एडोलेसेंट टू हैव अ यंगर सिबलिंग विद अ टर्मिनल इलनेस। लेट्स से कि एक यंग बच्चा है, एडोलेसेंट है, 11-12 साल का बच्चा है, और उसका एक छोटा भाई है जिसको लेट्स से कि लिवर का कैंसर है, और वो देख रहा है कि उसके सामने एक छोटा सिबलिंग एक टर्मिनल इलनेस के साथ है जिसको क्योर नहीं किया जा सकता, तो उसके एक्सपीरियंसेस कैसे होंगे। यानी हम ये देखते हैं कि
आप उन सिचुएशन जो गुजार रहे हैं उसमें वो फिनोमिना आपको क्या एक्सपीरियंसेस दे रहा है, और व्हाट इज द लिव्ड एक्सपीरियंस ऑफ अ केयरिंग ऑफ एन ओल्डर हाउस बाउंड डिपेंडेंट पेरेंट। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पेरेंट्स जो हैं वो बीमार होते हैं ओल्ड एज में, या वो घर में डिपेंडेंट होते हैं और वो उनके साथ रहते हैं। सो कल्चरली तो हम देखते हैं ना कि पेरेंट्स से बच्चों की केयर करनी है, लेकिन ये एक सिचुएशन डिफरेंट है जिसमें छोटे बच्चों ने पेरेंट्स की केयर करनी है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर उनका एक्सपीरियंस टुवर्ड्स पेरेंटिंग, एक्सपीरियंस टुवर्ड्स देयर ओन चाइल्डहुड क्या होगा, वो कैसा महसूस करेंगे, वो किस तरीके से अपनी ज़िंदगी जो है उसको पेन डाउन करेंगे। एक्चुअली ये रिसर्च मैंने एक की और उसके रिजल्ट्स अभी हम लोग पब्लिश भी करने जा रहे हैं। इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग रिसर्च जिसमें मुझे ये पता चला कि वो बच्चे जो कि 12 ईयर्स के एज से लेके 35 तक चले गए, दे हैड सच बैड मेमोरीज ऑफ देयर चाइल्डहुड, क्योंकि उन्होंने अपने बचपन में ही बहुत बहुत मुश्किल काम किए अपने पेरेंट्स की वजह से। लाइक उन्होंने उनको नीट क्लीन करना, उनको चेंज करना, उनको खाना खिलाना, उनको दवाइयाँ देना, इन चीज़ों को सीखना और समझना उस एज में शुरू कर दिया जब बच्चे खिलौनों से खेलते थे। So it's not an easy thing and not a small thing to look down into, to dig down into the phenomenology of any particular situation or phenomena. तो इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो हैं वो सामने आती हैं। थोड़ा सा बताना चाहूँगी मैं आपको कि जब हम फिनोमेनोलॉजी जो है उसको देखते हैं तो ये एक किसी इंडिविजुअल के लिव्ड एक्सपीरियंस को फुली डिस्क्राइब करता है। और ये दो तरह की फिनोमेनोलॉजीज होती हैं, एक डिस्क्रिप्टिव फिनोमेनोलॉजी होती है और एक इंटरप्रेटिव फिनोमेनोलॉजी होती है। सो जो डिस्क्रिप्टिव फिनोमेनोलॉजी होती है उसका एम ये होता है कि हम एक लिव्ड एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करेंगे विदाउट अटेम्प्टिंग टू गिव अ मीनिंग टू इट। यानी अगर एक बच्चा अपना कुछ भी एक्सपीरियंस बता रहा है, मैं उस एक्सपीरियंस के साथ अपनी कोई थ्योरी, अपनी कोई जो वर्ड्स हैं वो अटैच नहीं करूँगी, ठीक है। एंड फिलोसॉफिकल इन्फ्लुएंस इसका क्या होता है, Husserl has talked about this, to bracket or leave aside the previous knowledge or investment in order to see phenomena as experienced। यानी मैं अगर एक रिसर्चर एक बच्चे के साथ काम कर रही हूँ जिसने अपने पेरेंट्स को लुक आफ्टर किया, जो कि 12-13 साल की उम्र से करता करता 20-25 में आ गया, और मैं उसकी फिनोमेनोलॉजी पूछ रही हूँ कि उसने कैसे अपना बचपन गुजारा, तो मैं वहाँ पर अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस, अपनी इंफॉर्मेशन, अपना नॉलेज उसके लिव्ड एक्सपीरियंस की इंटरप्रिटेशन के लिए इस्तेमाल नहीं करूँगी, बिकॉज ऑफ कोर्स आई हैव अ डिफरेंट बैकग्राउंड। मैं एक डिफरेंट तरह से बड़ी हुई हूँ, मेरे अलहदा एक्सपीरियंसेस हैं, मैंने अपने एक्सपीरियंसेस को नेम नहीं करना उसके एक्सपीरियंसेस एक्सप्लेन करते हुए, ना ही मैंने किसी साइकोलॉजिकल थ्योरी के साथ उसको लिंक करना कि इसका मतलब ये है, फ्राइड इसको ऐसे इंटरप्रेट करता है, अच्छा जी रॉजेरियन स्कूल ऐसे करता है, यूंग ऐसे करता है, मैं ये नहीं करूँगी। Whereas in interpretive phenomena, the aim is to reveal and interpret implicit meaning in a lived experience। यहाँ पर जो मेजर फिलोसॉफिकल एक्सपीरियंसेस हैं हेडगर के, पॉन्टी के एंड सार्टे के, वो ये क्या कहते हैं कि रिसर्चर्स कैन नॉट एक्सट्रैक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द रिसर्च। वो ये कहते हैं कि जब आप एक रिसर्च कर रहे हैं तो आप अपने आप को उससे बाहर नहीं रख सकते। एंड पॉन्टी सेज दैट यू डू interpretation in the light of your own perspective, ठीक है, and then we are always becoming ourselves। यानी अगर एज अ रिसर्चर मेरे माइंड में जो भी फिनोमेनोलॉजी होगी मैं अपनी इंटरप्रिटेशन में उसको जरूर इस्तेमाल करूंगी। दिस इज कॉल्ड द इंटरप्रेटिव फिनोमेनोलॉजी। सो हम इन दोनों चीज़ों को सेपरेटली देखते हैं और सेपरेटली डील करते हैं। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा ये बता देती हूँ कि जब हम इसको प्रोसेस कैसे करते हैं। थोड़ा सा आपके लिए शायद टेक्निकल होगा, लेकिन इसको आप एक ओवरव्यू दे सकते हैं कि थियरी ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड फोकस इज ऑन इंडिविजुअल्स। सो आइडियोग्राफी में हम इंडिविजुअल्स को फोकस कर रहे होते हैं, एंड ह्यूरिस्टिक्स के अंदर हम लोग थियरी ऑफ इंटरप्रिटेशन को फोकस कर रहे होते हैं। तो इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी बिकॉज दिस इज लिटिल मोर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फिनोमेना टू टॉक अबाउट। आपके लिए मेरी इतनी इंफॉर्मेशन मुझे लगता है काफ़ी है कि हम आईपीए को समझ लें और हम यानी इंटरप्रेटिव फिनोमेनोलॉजिकल अप्रोच को समझ लें विच इज़ नोन एज आईपीए, और हम उसकी इन दो टाइप्स को समझ लें जिनकी मैंने आपसे भी बात की है। नाउ लुकिंग एट वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग एंड अनदर वन विच इज एथनोग्राफी। एथनोग्राफिक स्टडीज फोकस ऑन अ कल्चर ऑफ अ ग्रुप ऑफ अ पीपल। और यहाँ पर मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग बात करना चाहूँगी। एक बहुत बड़ी सोशल रिसर्चर थी जिनका नाम था मार्गरेट मीड।
सो मार्गरेट मीड जो है वो एक स्पेसिफिक अफ्रीकन सबर्ब्स में कोई कल्चर था जिसकी चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस जो थी उनके बारे में उन्होंने सुना और वो जानना चाहती थी कि वो क्या कल्चर है, वहाँ पर लोग कैसे अपने बच्चों को बड़ा करते हैं और कैसे उनकी वो डेवलपमेंट करते हैं. तो शी वेंट टू दैट कल्चर, शी स्टार्टेड लिविंग देयर फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. फिर फाइनली वो उस कल्चर का हिस्सा बन गई. शुरू में लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, फिर वो वहाँ रहने लग गई. उसके बाद उनकी वहीं पे शादी हो गई और वो उसी कल्चर में उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारी. और उन्होंने एथनोग्राफिक रिसर्च जो थी वो वहाँ पर बच्चों की जो चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस होती हैं उसके ऊपर कंडक्ट की. सो पाकिस्तान में भी जैसे हम देखते हैं कैलाश का कल्चर है, हमें उस पर बड़ा इंटरेस्ट डेवलप होता है कि कैलाशी लोग जो हैं उनकी लाइफस्टाइल क्या है, उनकी सर्टन प्रैक्टिसेस क्या हैं. देयर आर लॉट ऑफ मिथ्स जो कि हमें नहीं पता कि एक्चुअली उनकी शादियां कैसे होती हैं, वो रिश्ते कैसे करते हैं, वो कैसे जो हैं अपने कबीलों में डिसीजन करते हैं, वो किस चीज़ को सही समझते हैं, किस चीज़ को गलत समझते हैं, उन पर कौन सा कानून इम्प्लीमेंट हो रहा है, वो तो अपने कानून खुद बना रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनके लिए इट्स इम्पॉर्टेंट टू गो एंड सी दैट उस कल्चर में लोग जो हैं वो किस तरीके से उनको ऑब्जर्व करके देखा जाए, बिकमिंग एन active participant in that culture to understand their experiences. So this is called ethnographic research. अगर ये easily I think ऐसे ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगी कि आप जाएं और वहाँ रहें और उनके experiences को जानें. Then grounded theory is another research. This is being used comparatively less, but it is very important क्योंकि जो पर्टिकुलर रिसर्चर्स हैं वो ग्राउंडेड थ्योरी करते हैं जिसमें एक जनरल रिसर्च प्रॉब्लम होती है, जिसमें वो पार्टिसिपेंट्स को सेलेक्ट करते हैं. उसके बाद वो बहुत सारी अपनी एक क्वेश्चन जो उन्होंने बेस किया होता है उसके ऊपर बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ करते हैं. लेट्स से कि वो इंटरव्यू करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, बहुत सारे तरह के डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करते हैं और उसके बाद वो एक थ्योरी को डेवलप करते हैं. तो ये वो काम है जो मेनली वो रिसर्चर्स जो थोड़े से एडवांस लेवल के होते हैं, जिनका कमांड होता है हर तरह की थ्योरीज के ऊपर और हर तरह की मेथड्स के ऊपर, वो ग्राउंडेड थ्योरी जो है वो उसके ऊपर वो लोग काम करते हैं. लेट्स से कि जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे कोविड के बाद हमने देखा कि हमारे पाकिस्तान के अंदर जो एक ट्रांजिशन का फेज था, दैट इज़ ह्यूज. लाइफ हैज़ नॉट बिकम द सेम जो पहले थी. लोग बहुत ज़्यादा ऑनलाइन टेक्नोलॉजी पे चले गए. ऑनलाइन टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ के हर स्फीयर में अपने आप को ले लिया. लाइक अगर हम मोबाइल की बात करें तो हम ऑनलाइन पेमेंट्स कर रहे हैं, हम ऑनलाइन लोगों को जो है वो डिफरेंट तरह की चीज़ों के लिए इंटरैक्ट कर रहे हैं, हम मीटिंग्स ऑनलाइन कर रहे हैं. ये जो आज हम मीटिंग कर रहे हैं ये भी सारा कुछ कोविड के बाद इमर्ज हुआ. पीपल हैव स्टार्टेड लर्निंग कि ऑनलाइन भी ट्रेनिंग्स एंड टीचिंग्स हो सकती हैं. तो हम इसके ऊपर अगर चाहें तो हम एक पूरा जो हमारा ये ट्रांजिशन हमें पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में नज़र आया है, इसको हम कि ये क्यों ऐसा हुआ, बिकॉज पीपल फाइंड इट more convenient, less expensive, more productive and many other things. You are sitting on your place and you are talking to 200 people at a moment और आपको उसके लिए कितने constraints हैं जिनसे आप बच जाते हैं. So we can work on that and we can develop a theory. So this is how a grounded theory works, but it is mainly used to develop a theory. Then interviews. This is another very interesting kind of a type जो बहुत use होती है. क्वालिटेटिव इंटरव्यूज जो हैं वो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज में सिर्फ उतना पार्ट होता है जिसके अंदर हम उनकी डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन या बेसिक चीज़ें पूछना चाहते हैं. देन सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू वो होता है जिसके अंदर हम क्वेश्चंस के आगे ओपन आंसर्स छोड़ देते हैं कि लोग उसके ऊपर अपनी मर्जी से जवाब दे सकते हैं और हम उनके जवाब नोट करते जाते हैं. और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज वो होते हैं जिसमें हमने पहले से कोई ख़ास सवाल नहीं बनाए होते, लेकिन हम उस पार्टिसिपेंट्स के जवाबों में से ही मजीद सवाल पूछते चले जाते हैं, उसके आंसर्स ही हमें लीड करते हैं टुवर्ड्स आस्किंग अ न्यू क्वेश्चन. सो दीज आर द 3 टाइप ऑफ द इंटरव्यूज विच इज बीइंग यूज्ड इन क्वालिटेटिव रिसर्च. देन फोकस ग्रुप डिस्कशन, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जिसमें हम एक क्वालिटेटिव रिसर्च टेक्निक है जिसमें हम एक 6 to 12 लोगों का एक ग्रुप एक जगह पर बिठाते हैं और 45 मिनट से लेके 90 मिनट्स तक एक मॉडरेटर हमारा दरमियान में होता है जो कि फैसिलिटेट करता है डिस्कशन को ओवर अ पर्टिकुलर टॉपिक. लेट्स से मैं ये कहती हूँ कि जो लोग प्राइवेट स्कूल्स में काम करते हैं, उन टीचर्स के जो स्ट्रेसर्स हैं वो कैसे डिफरेंट हो सकते हैं पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले टीचर्स से. तो मैं उसके लिए पब्लिक सेक्टर के नहीं बल्कि प्राइवेट सेक्टर के टीचर्स का एक ग्रुप बैठाती हूँ
और मैं उन 6 to 12 टीचर्स से पूछती हूँ कि आपके इश्यूज और आपके प्रॉब्लम्स क्या हैं, आपके डोमेस्टिक स्ट्रेसेस क्या हैं, आपके प्रोफेशनल स्ट्रेसेस क्या हैं, आप उनसे कोप कैसे करती हैं। और इसी तरह मैं पब्लिक सेक्टर के अलग बिठा लेती हूँ और मैं उनसे पूछती हूँ कि उनके क्या हैं। तो मुझे पता चलेगा कि दोनों की अलग अलग थीम्स निकल रही हैं। उन थीम्स के बारे में भी मैं आपसे हल्की सी बात करूंगी कि फोकस ग्रुप कैसे काम करता है। सबसे पहले हम पार्टिसिपेंट आइडेंटिफाई किए मैंने कि मेरे प्राइवेट स्कूल के टीचर्स होंगे। उसके बाद मैंने आइडेंटिफाई किया कि मैं सिर्फ फीमेल टीचर्स से लूंगी। फिर मैंने एक गाइड प्रिपेयर की जिसको कहते हैं मॉडरेटर गाइड और डिस्कशन गाइड, जिसमें हमने क्वेश्चंस बनाए कि हमने फोकस ग्रुप में क्या पूछने हैं। फोकस ग्रुप की जो गाइड होती है उसमें 4, 5, 6 सवाल, मैक्सिमम 7 सवाल, इससे ज़्यादा सवाल नहीं होते। मोस्टली 3 से 4 सवालों के साथ ही हम इसमें चलते हैं। और वो क्वेश्चंस जो हैं जब हम फ्लोट करते हैं तो वो डिस्कशन इतनी ह्यूज हो जाती है जिसे हमें फिर वापस ट्रैक पे लाने के लिए मॉडरेटर की ज़रूरत होती है। देन चूज अ लोकेशन फॉर द फोकस ग्रुप। लाइक मैं कहती हूँ कि मैं किसी यूनिवर्सिटी में कर रही हूँ, किसी ऑर्गेनाइजेशन में कर रही हूँ, अपने घर पे कर रही हूँ, जहाँ पे सारे पार्टिसिपेंट्स कन्वीनियंटली आ सकें। फिर मैं वो 6 to 12 जो मेरे पोटेंशियल पार्टिसिपेंट्स हैं, किन स्कूल की टीचर्स ले रही हूँ, लेट्स से मैंने लिस्ट आउट किया कि किन किन स्कूलों से मैंने टीचर लेनी है। फिर मैंने प्रोटोकॉल से उनको इनवाइट किया, ये सारा कुछ किया। देन एक ट्रेन मॉडरेटर जो है वो 90 to 120 मिनट्स में उनके साथ सेशन करेगा। एंड देन हम उसको एनालाइज करेंगे यूजिंग व्हाट we analyze a focus group discussion or an interview using thematic approach। जब हम thematic approach यूज करते हैं तो इस focus group के जो results हैं उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमने कैसे करना है। उसकी मैं आपको नेक्स्ट में बताती हूँ। ये IPA की मेजर एनालिसिस इन क्वालिटेटिव रिसर्च हैं, जिनमें से पहले मैं आपको IPA का एनालिसिस बताऊंगी और फिर इंटरव्यू और फोकस ग्रुप का। Briefly speaking about the interpretation of IPA, because it is huge and you have to dig down a lot, इसको करने के लिए बहुत एक्सपर्टीज चाहिए। लेकिन सबसे पहली चीज़ ये है कि you have to read and reread। आप उस ओरिजिनल डाटा को जो आपके पास ट्रांसक्राइब होकर आया है इंटरव्यू रिकॉर्डिंग से, आप उसको पढ़ें और बार बार पढ़ें। उसके बाद उसके इनिशियल नोट्स बनाएं कि कौन सी चीज़ या कौन सी बात जो है वो आपको इम्पोर्टेंट लग रही है। लेट्स से मैं अगर ये टीचर्स के स्ट्रेस की बात करती हूँ, मेरे पास एक पूरा जो है वो आ गया कि एक टीचर लाइक उसने अगर 20 साल टीचिंग किया है प्राइवेट स्कूल में और उसके बाद उसने छोड़ दिया है। मैं उसके पूरा एक्सपीरियंस पूछ रही हूँ। उसने एक बड़ा सा ट्रांसक्रिप्ट मुझे तैयार करके दे दिया कि जी ये सारा हमारे पास लिव्ड एक्सपीरियंसेस आए हैं, इनकी अब आप IPA इंटरप्रिटेशन करें। पहले मैं पढ़ूंगी, फिर दोबारा पढ़ूंगी, उसके बाद मैं नोट्स लूंगी कि वो कहाँ कहाँ पर अपने डिफरेंट तरह के स्ट्रेस की बात करी है। लेट्स से वो कहीं पे कह रही है कि मेरा वर्कलोड बहुत ज़्यादा था। फिर वो ये बात कर रही है कि जी मेरे फ्री पीरियड्स नहीं लगते थे, मुझे बहुत ज़्यादा क्लासें मिली हुई थी। फिर मुझे टेक्नोलॉजी से जगल करना पड़ता था, विद एज में टेक्नोलॉजी से जगल नहीं कर सकती थी। नोट्स लेना शुरू करते हैं। फिर उनमें से मिलते जुलते जो आपके नोट्स होते हैं, उन नोट्स के आप कोड बनाते हैं और उनके बेसिस के ऊपर आप थीम्स डेवलप करते हैं, विच इज़ कॉल्ड डेवलपिंग इमर्जेंट थीम्स। तो उस ट्रांसक्रिप्ट से आप नोट्स से थीम्स बनाना शुरू करते हैं। तो मुझे पता चलता है जी ये सारे उसके टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड स्ट्रेस हैं, या ये उसके प्रोफेशनल स्ट्रेसेस हैं, या ये उसके एडमिनिस्ट्रेशन के इश्यूज के स्ट्रेसेस हैं। इसी तरह फिर मैं देखती हूँ कि इनके बीच में कनेक्शन क्या है। जब मैंने 3 या 4 थीम्स को कनेक्ट किया तो मुझे पता चला कि ये सब प्रोफेशनल स्ट्रेसेस होंगे, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी की बात कर रही हैं, ये स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन की बात कर रही हैं, ये जो है वो वर्कलोड की ज़्यादती की बात कर रही हैं। तो मैंने एक प्रोफेशनल स्ट्रेसेस की उसको मेजर थीम दे दी। फिर मैं अगले केस पे चली जाती हूँ। तो इसी तरह IPA अगर हम जितने भी लोगों से कर रहे हैं, हम केस टू केस उनको देखते हैं। फिर स्टेप 6 पे हम उन केसेस के अक्रॉस पैटर्न देखते हैं कि क्या आ रहा है, और फिर फाइनली हम इंटरप्रेट करते हैं इनटू डीपर लेवल, और हम कुछ मेजर चीज़ें आइडेंटिफाई करते हैं कि इन सारे 6 या 7 पार्टिसिपेंट्स जो अगर उन्होंने ये लिव्ड एक्सपीरियंस किया तो उनके रिजल्ट्स जो थे वो कहाँ कहाँ किस स्टेज पर सिमिलर थे। इसी तरह जब हम थीमेटिक एनालिसिस में करते हैं, इसमें ये होता है कि सारे पार्टिसिपेंट्स अलग अलग नहीं हमने इंटरव्यू किए, ये तो फोकस ग्रुप में हमारे ग्रुप में बैठे हुए हैं। इनका हम पहले डाटा लेते हैं, उसके बाद हम उनकी इसी तरह ट्रांसक्रिप्ट की कोडिंग करते हैं। उसके बाद हम उनकी जो थीम्स हैं उसके ऊपर कोड लगाते हैं। फिर उन कोड्स को दोबारा पढ़ते हैं, फिर रिव्यू करते हैं। उसके बाद फिर उनको नाम देते हैं, और फिर फाइनली हम उनको एनालिसिस करते हैं, और हमें पता लगता है कि हमारी कितनी थीम्स डेवलप हुई, और कितनी हमारी मेन थीम्स थी, कितनी हमारी सब्सिक्वेंट थीम्स थी, और हमारे कोड्स क्या थे। सो दिस इज हाउ वी डू थीमेटिक एनालिसिस।
ये एक ओवरऑल मैंने हिरार्की ऑफ एविडेंस की बात की है ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च डिजाइन, कि आप देखें हम नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है वो क्वालिटी भी नीचे से ऊपर इंक्रीज हो रही है, प्रॉमिसिंग, सपोर्टेड एंड वेल सपोर्टेड, ये भी हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है। पहली बेसिक चीज एक्सपर्ट ओपिनियन एंड बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन होती है। देन देयर इज अ केस रिपोर्ट, then there is a case control study, then there is a cohort study, then there is a randomized control study. अब आप देख रहे हैं कि ये कुछ थोड़ी सी ज्यादा नई और फैंसी टर्म्स जो हैं वो आपको सुनने में मिल रही हैं। ये इसलिए मिल रही हैं, इसमें ये जो ब्लू की ऊपर वाली दो टाइप्स हैं ये मैंने आपको नहीं कराई क्योंकि ये क्लिनिकल रिसर्च में एक्सक्लूसिवली यूज होती हैं और मुझे ये लगा कि ये बाकी पार्टिसिपेंट्स के साथ जाती होगी उन्हें ये पढ़ाना। उसके बाद मेटा एनालिसिस पे आ जाते हैं हम, और फिर मेटा एनालिसिस के बाद हम सिस्टमैटिक रिव्यूज पे आ जाते हैं। मेटा एनालिसिस जो है ये टेक्निक्स जो है इसके अंदर हम बहुत सारी डीप डाउन जो है वो रिसर्च जो है उसको डिग करते हैं और डिफरेंट कंटेंट्स को एनालिसिस करके हम अपना एक एविडेंस प्रोड्यूस करते हैं। और सिस्टमैटिक रिव्यू जो है वो बेसिकली ऑलरेडी इस्टेब्लिश हमारे पास जो थाउजेंड एंड हंड्रेड्स ऑफ रिसर्च हैं उनको सिस्टमैटिकली इसमें हम रिव्यू करते हैं, विच इज़ ऑफ अ टॉप क्वालिटी काइंड ऑफ रिसर्च। तो ये हमारे डिफरेंट टाइप्स हैं जिनको हम रिसर्च में कहते हैं कि ये हमारी बेसिस ऑफ एविडेंस ऑफ हायरार्की ऑफ एविडेंस जो है वो इस तरह से मूव करता है। सिस्टमैटिक रिव्यूज एंड मेटा एनालिसिस वैसे मैंने ब्रीफली आपको बता दिया, मगर फिर भी मैं बता देती हूँ कि सिस्टमैटिक रिव्यू में हम हर तरह की पॉसिबल स्टडीज जो भी किसी एक टॉपिक पे हुई होती हैं, उसके डिज़ाइन, उसके कैसे एनालिसिस किया है, उनको हम कलेक्ट करते हैं और उसके बाद हम उन्हें एवेल्युएट करते हैं स्टेटिस्टिकली भी और अदरवाइज भी, और हम देखते हैं कि ये ओवरऑल इस टॉपिक पे होने वाली सारी रिसर्चेस जो हैं वो सिंथेसाइज करके हमें क्या बता रही हैं। उसके बाद लेट्स से मेटा एनालिसिस की बात करते हैं। इट्स अ वैलिड, ऑब्जेक्टिव एंड साइंटिफिक मेथड ऑफ एनालाइजिंग एंड कंबाइनिंग डिफरेंट रिजल्ट्स। लाइक हम क्या करते हैं, जो सबसे ज़्यादा रिलायबल रिजल्ट्स होते हैं उनको हम मेटा एनालिसिस को बेसिकली हम रेंडमाइज कंट्रोल डिज़ाइन के ऊपर लगाते हैं, विच इज़ अ हाई लेवल ऑफ एविडेंस जो कि हमने क्लिनिकल की रिसर्चेज में करनी होती है, जहाँ पर हम लोग ड्रग्स जो हैं उनके ऊपर ट्रायल कर रहे होते हैं, जैसे कोई वैक्सीन्स आती हैं उन पर हम ट्रायल्स कर रहे होते हैं, ये वहाँ पर ज़्यादातर यूज़ होती हैं। अच्छा, ये मैं आपको स्किप कर दूंगी। दिस इज़ अबाउट द रेंडमाइज कंट्रोल डिज़ाइन RCTs बिकॉज दिस डज नॉट कम इनटू योर प्रीव्यू मच। यही क्लिनिकल ट्रायल है, स्लाइड्स आपके पास हैं बट आई वुड नॉट गो इनटू दीज डिटेल कि ये हम किस तरीके से क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं। कोहोर्ट स्टडीज़ भी हम बेसिकली ऐसे ही सिचुएशन के अंदर यूज़ करते हैं जिसमें हमने जो है वो कोई क्लिनिकल स्टडी करनी होती है, इसलिए ये स्लाइड्स में शेयर कर रही हूँ बट ये मैं आपको पढ़ा नहीं रही हूँ। ये कोहोर्ट स्टडी का ही सैंपल है फॉर दोज हु आर एक्चुअली इंटरेस्टेड टू नो अबाउट दिस। जैसे रिट्रोस्पेक्टिव कोहोर्ट स्टडी भी होती है और प्रोस्पेक्टिव कोहोर्ट स्टडी भी होती है, यानी कि हमारे पास जो पॉपुलेशन है उसमें एक्सपोज ग्रुप भी हो सकता है, अनएक्सपोज भी हो सकता है, और फिर उनके आगे टाइप्स होते हैं इवेंट ग्रुप एंड नॉन इवेंट ग्रुप एंड अनएक्सपोज में भी इवेंट एंड नॉन इवेंट। जैसे अगर हम कोरोना वायरस की बात करें तो हमारे पास स्टडी पॉपुलेशन में अगर ओवरऑल पॉपुलेशन की उसको दो में डिवाइड करते हैं, दोज हु हैव एक्सपीरियंस कोरोना वायरस एंड दोज हु डिड नॉट। फिर कोरोना वायरस जिन्होंने एक्सपीरियंस किया उसमें से किसी के लंग्स को कोई इफेक्ट हुआ या उनके लंग्स को इफेक्ट नहीं हुआ। सो फिर हम डिजीज के प्रोग्रेशन से उसको आगे की तरफ देखते हैं और वो प्रोस्पेक्टिव कोहोर्ट स्टडी कहलाती है। और हम एक फुल फ्लैश केस हमारे पास आता है विद लंग डैमेज, तो हम उसकी रिट्रोस्पेक्टिव कोहोर्ट स्टडी करते हैं, लुक बैक करते हैं। सो दीज आर द टू टाइप्स जिसके मुताबिक हम इनको डील करते हैं। ये दोनों ही चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं हमारी रिसर्च में। केस कंट्रोल डिज़ाइन जो है इसके बारे में मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहूँगी कि ये हमारा बेसिकली किसी भी सिनेरियो में यूज़ हो सकता है, लेकिन इस केस कंट्रोल डिज़ाइन के अंदर हम पर्टिकुलरली एक जो हमारा केस स्टडी होती है, जो ऑब्जर्वेशनल स्टडी होती है, मोस्टली हम उसको यूज़ करते हैं और फिर हम देखते हैं कि उसके साथ क्या क्या फैक्टर्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है। लेट्स से अगर मैं पाकिस्तान को एक केस स्टडी के तौर पे लूँ, और मैं यही कोविड की एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ, दिस इज़ वेल अंडरस्टूड टू मैनी ऑफ द वर्दी पार्टिसिपेंट्स। तो कोविड को अगर एक पाकिस्तान में एक केस स्टडी के तौर पे देखा जाए तो यहाँ ये समझ आती है कि यहाँ पर जो डैमेज और डिजास्टर था वो कंपैरेटिवली कम था एज कम्पेयर टू द यूरोपियन एंड अमेरिकन कंट्रीज।
तो हमें समझ आती है कि इसके एसोसिएटेड फैक्टर्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है। यहाँ की वेदर कंडीशंस, यहाँ पर लोगों की इम्यूनिटी, यहाँ पे लोगों की जो है वो हाइजीन प्रैक्टिसेस, यहाँ पे लोगों की और बहुत सारी चीज़ें। तो वो हमें एक केस स्टडी के तौर पर ये वेरिएबल नज़र आता है कि हम इसको स्टडी कर सकते हैं। सो इसको हम एक केस कंट्रोल स्टडी कह सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट एग्जांपल्स दी हुई हैं, लेकिन मैंने कोविड की एग्जांपल इसलिए दी है कि ये सबसे सिंपल और आसान है लोगों को समझने के लिए। ये केस कंट्रोल का स्टडी डिज़ाइन है जिसमें हम पास्ट और प्रेजेंट एक्सपोजर येस या नो की बात करते हैं, आउटकम सैंपल केसेस की बात करते हैं। अब इसे कोविड की लाइट में अगर समझें तो आपको बहुत अच्छी तरीके से ये केस कंट्रोल स्टडी डिज़ाइन समझ आएगा कि इसमें हमारे पास पॉपुलेशन विद आउटकम केसेस कैसे है एंड पॉपुलेशन विदाउट आउटकम कंट्रोल्स जो है वो कैसे हम इसमें देख सकते हैं। केस रिपोर्ट आई थिंक आप सब फेमिलियर होंगे कि ये एक रिपोर्ट होती है जिसमें हम सिम्टम्स, साइंस, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, फॉलो अप सारा कुछ लिखते हैं। केस रिपोर्ट पर्टिकुलरली साइकोलॉजी में यूज़ होती है, बहुत ज़्यादा सोशल वर्क में यूज़ होती है। आई एम नॉट श्योर अबाउट अदर डिसिप्लिन्स, बट इसका पर्पस जो होता है वो मोस्टली एक इंडिविजुअल की डिजीज़ की या उसकी परफॉर्मेंस की या उसकी जो है वो सोशल किसी इशू से रिलेटेड उसकी कंप्लीट जो है वो केस बना के देना होती है। एक्सपर्ट ओपिनियन इज अनदर मेथड ऑफ द रिसर्च जिसमें हम लोगों के एक्सपर्ट्स के व्यूज़ लेते हैं अबाउट अ सर्टेन फिनोमेना। लेट्स से एक्सपर्ट ओपिनियन को हम ऐसे भी यूज़ करते हैं कि अगर हमने एक कोई क्वेश्चनियर बनाया है जो कि असेस कर रहा है लोगों के स्ट्रेस को या उनके डिप्रेशन को, उस पर हम 5 या 6 एक्सपर्ट्स ले लेते हैं और हम उनसे कहते हैं कि आप हमें अपनी एक्सपीरियंस की लाइट में एविडेंस दें कि क्या ये काम जो हम करने जा रहे हैं या हमने जो असेस किया है ये ठीक है या नहीं है। सो एक्सपर्ट ओपिनियन इज ऑल्सो वन ऑफ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद another important thing that the ethical practices which we need to see, I know we are going towards the end of the presentation, तो मुझे यहाँ पर ethical matters की ज़रूर बात करनी है कि ethical matters जो है ये इस सारी researches में बहुत बहुत important है कि हम अपने participants की safety को देखें, हम अपनी रिसर्च की साइंटिफिक इंक्वायरी को देखें, उसके बाद हमें ह्यूमन राइट्स की डिग्निटी को किसी भी सूरत में कंप्रोमाइज़ नहीं करना, हमने हमारी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं हमने उनको पूरा करना है। वी हैव टू बिल्ड ट्रस्ट इन रिसर्च एंड इंस्टीट्यूशन। हमने लोगों को कोई भी ट्रीटमेंट कंडीशन एक्सपोज करके उसको उसका फ़ायदा नज़र ना आ रहा और हम इन बिटवीन उसको छोड़ दें, हम ये नहीं कर सकते। एंड देन वी हैव टू कंप्लाई विद द लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लाइंस, यानी जो भी लीगल और रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस होते हैं हमने उनको भी पूरा करना है। किसी इंस्टीट्यूशन के हैं, हमारे हुकूमत पाकिस्तान के हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, वी नीड टू सी देम एज वेल। So now going towards the conclusion. In conclusion, I believe that both qualitative and quantitative research are invaluable in pursuit of knowledge. हम दोनों तरीकों से बहुत सारा इंफॉर्मेशन और मटेरियल गेन कर सकते हैं और इन दोनों की यूनिक कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं फील्ड ऑफ रिसर्च में, इनकी अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स हैं और हम इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी अपनी फील्ड में, इट्स अप टू द रिसर्चर. सो वी नीड टू एम्ब्रेस द डाइवर्सिटी ऑफ द मेथड्स अवेलेबल टू अस and we all should together strive for the excellence in our all research endeavors. And I believe that no research without action and no action without research. This is being said by one of a very famous German American psychologist, Kurt Jung. So this is it with my presentation, and I hope that I will have been able to deliver something good to you. So over to the admin panel to look into question answer session. Okay, ma'am. जी. Yes, ma'am, you can ask. अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, वो उस वक्त याद था और वो इतनी ज़्यादा स्लाइड्स थी कि वो भूल गया। व्हाट इज मेंट बाय IPA? IPA is the short term word for interpretive phenomenological
अप्रोच, IPA। ओके, ठीक है जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी प्लीज। जी मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि हमारा जैसे BS लेवल है, कौन सी टाइप के रिसर्च डिज़ाइन जो है उसके ऊपर हम उनको रिसर्च करवाएं जो इजी भी हो और बिगिनर्स के लिए जो है वो हैंडल करना इजी हो जाए। गुड क्वेश्चन। मैडम आप अपना डिसिप्लिन बताएंगी, आपका सब्जेक्ट क्या है? मेरा सब्जेक्ट जी साइकोलॉजी है लकीली, और मैं बहावलपुर से हूँ, शाजिया सबाहत मेरा नाम है। जी जी मैडम शाजिया, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि BS लेवल के ऊपर आप जो है वो उनको खुज़ाई एक्सपेरिमेंटल रिसर्च रिकमेंड कर सकती हैं, लेकिन सिंपलेस्ट इज़ टू डू द कोरिलेशनल रिसर्च डिज़ाइन। और अगर आप जाना चाहती हैं क्वालिटेटिव की तरफ, तो मुझे लगता है कि BS के स्टूडेंट्स IPA और ग्राउंडेड थ्योरी बिल्कुल नहीं कर सकते, इसलिए उनको बिल्कुल भी उस पर एक्सपोजर ना दें आप। BS के स्टूडेंट्स फोकस ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं, वो उनके लिए आसान होती हैं, इंटरव्यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली आप ये समझ लें कि फोकस ग्रुप और इंटरव्यूज़ जो हैं वो BS के स्टूडेंट के लिए क्वालिटेटिव का बेहतर मेथड है, और क्वांटिटेटिव के मेथड में अगर आप उनको खुज़ाई एक्सपेरिमेंटल करवा लें या आप उनको सर्वे रिसर्च करा लें या कोरिलेशन रिसर्च करा लें तो वो बहुत बेहतर है। थैंक यू सो मच। You are most welcome. Any other comment, feedback, G, please? I think Saima Zulfikar wants to say something. G, please, if there is anything which you would like to ask. मैं जी अपनी ये स्लाइड्स जो हैं वो शेयर कर लूँगी। आई एम लुकिंग इनटू द चैट बॉट। इसमें समवन इज़ आस्किंग फॉर द स्लाइड्स कि उनको इनिशियल स्लाइड्स चाहिए। जी मैं ज़रूर आपके साथ इनिशियल स्लाइड्स, ये आपकी प्रॉपर्टी हैं, ये मैंने एडमिन से शेयर कर दी हैं। प्लीज़ फील फ्री टू शेयर इट विद एवरीवन। नॉलेज की कोई बाउंड्रीज नहीं होती, इट शुड बी फॉर एवरीवन एंड एनीवन। तो आप ज़रूर इनसे ये शेयर कर लें। Okay, ma'am. Thank you so much, ma'am. And Thank I you would so also much. like to say thank you to Nasir Iqbal, Akila Mushtaq, Abdur Rahman, and Maliha Awad, or I'm unsure about the second name, but Maliha, for giving your nice comments into the chat bot, and the claps which I've been received by the Shazia. Thank you very much for your appreciation, and it's honor to be the part of this training workshop. Thank you so much, Thank you. ma'am. Thank you so much. Thank you very much. So, any more questions, admin panel? Please, आप बता दें. No, ma'am. It's okay. Thank you so much. Thank you, Ji. So, can Thank I you, leave Ji. the meeting now? Yes, ma'am. Of course. Thank you so much. Thank you, Ji. Jazakallah, and बाकी लोग भी जो अपने comments दे रहे हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया. I can see Nasreen, Shazia, Hamida Fatima, Saima Zulfikar. I am indebted to you for taking time out to give your comments, because एक मेरी वीडियो, I don't know, it was not being shared somehow. I will check out for the next session कि ये क्यों नहीं हुई. But those who have listened and have been giving me the positive comments, वो आपका मोरल बूस्ट होता है. एक उस्ताद तो हमेशा अच्छे कमेंट से खुश होता है. सो इरम, डॉक्टर अशफाक, डॉक्टर साइका बतूल, आयशा हुमैरा, मुबशरा फरा, all of you, thank you very very much for listening to me, and जज़ाकल्लाह खैर. जिनको मैं नहीं नाम ले सकी, कोई मेरी चैट बॉक्स से मिस हो गई हैं, उनका भी शुक्रिया. once again I am leaving, जी. I would like to take my leave. Allah Hafiz. Thank you so much, ma'am. Thank you.